Hello everyone, welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. Today we are going to learn the first poem of our syllabus, that is Where the Mind is Without Fear by Ravindranath Tagore. Ravindranath Tagore, who was born in Kolkata, now it's called as Kolkata. So he was not only a writer but also a painter, a philosopher and a composer. जो कि एक राइटर ही नहीं थे, वो चित्रकार थे, तत्वज्ञ थे और कंपोजर भी थे. सो एक्चुअली वन इन ऑल, ऐसा एक व्यक्तिमत्व उनका था. सो द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हीज नोबेल विनिंग कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि, जो एक काव्य संग्रह था गीतांजलि, जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में. उसी कलेक्शन से यह पोएम ली गई है. सो वी कैन से दैट दिस स्पेशली दिस पोएम was written in Bengal language in 1910, and after that in 1912 Ravindranath Tagore himself translated it into English language in 1912. Yes. So we can say that a very famous poem which is taken from Gitanjali. So it is very sensitive, fresh and beautiful words we can see here. It's a free verse actually. Free verse means what? Free verse means the poem which does not follow any rhyme scheme or meter. So that's called as a free verse. ये मुक्त काव्य है. It was originally written in Bengal language, as I said to you. So because of Gitanjali, Ravindranath Tagore became the first non-European person who got Nobel Prize for Literature. Okay, so we will just take some information about this poem first and then we will go to the poem. Okay, so this poem has been written by the poet in the form of a prayer to God for the true freedom of his country or of our country. सो एक प्रेयर के फॉर्म में ये कविता लिखी गई थी, जो जहाँ पे कवि गॉड को प्रेयर कर रहे, प्रार्थना कर रहे, कौन सी चीज़ के लिए? तो ट्रू फ्रीडम, एक सच्ची स्वतंत्रता हमें हमारे देश को मिलनी चाहिए. सो यू नो वेरी वेल व्हेन दिस पोएम वाज रिटन, द होल इंडिया, और वी कैन कॉल एज द होल इंडिया, was under the rule of British people. So that's why it is the one type of vision of Ravindranath Tagore, that what should happen with our country or what type of freedom should be given to our country. Or we can see here, the poet wishes for his country to be free from oppressive rule of the colonizers. जो colonial rule था ब्रिटिश पीपल का, उससे फ्रीडम कवि चाहते थे. तो यहाँ पे जो ब्रिटिश पीपल है उन्होंने हमें फ्रीडम देना चाहिए, ऐसा एक व्यू, एक विजन उन्होंने इस काव्य में, इस कविता में एक्सप्रेस किया है. तो चलो हम देखते हैं हमारे कविता की जो पहली दो लाइन्स है उसे हम शुरुआत करते हैं. मैं वहाँ पे एक अंडरलाइन करता हूँ जो कि आपको समझ में आएगा कि कौन सी लाइन हम पढ़ रहे हैं. ओके, तो देखिए स्क्रीन पे मैं यहाँ पे थोड़ा ये स्क्रीन बड़ा करता हूँ. ओके, ये जो पहली लाइन है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि आवर कंट्री वॉज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश पीपल.
So that time the people were having a fear in their mind, if they do any action, so what action will be taken by British people on him or her. डर था उनके मन में. So they were having a fear that actually the British people may kill to them or put them into jail. Yes, so many things were there. So उस टाइप का डर उनके मन में था. मगर कभी यहाँ पे एक विजन उन्होंने रखा है, एक अपील की है कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, सो एक्चुअली वेयर द पीपल कैन लिव फियरलेसली, जहाँ पे फियर ना हो, डर ना हो उनके मन में, ऐसा एक देश वो चाहते हैं. यहाँ पे जो वर्ड है द माइंड, ये जो वर्ड है द माइंड, ये माइंड क्या एक्सप्रेस कर रहा है? इट स्टैंड्स फॉर द सिटीजन ऑफ द आवर कंट्री. ओके, so that's why it's also called as a synecdoche, the figure of speech we can call as here. And the head is held high. So what I mean by head is held high? Head is held high का मतलब होता है self respect, self dignity, self esteem. You can write down please. प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा उसे क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा कहते हैं. ओके, उनका आत्मसम्मान उन्हें मिलना चाहिए. ओके, तो ये बातें उन्होंने यहाँ पे बताई है. सो आफ्टर दैट हम और एक बात यहाँ पे जानते हैं कि द हेड जो वर्ड है वो भी इज स्टैंडिंग फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री. सो द माइंड एंड द हेड बोथ आर हियर स्टैंडिंग फॉर द सिटीजन of our country. So that's why here we can call as the synecdoche figure of speech is there. Another figure of speech is there where the mind is without fear. यहाँ पे WW से W साउंड से दो वर्ड्स की शुरुआत हुई है यहाँ पे, जो where and without है. So that's why it's also called as alliteration. और एक यहाँ पे देख सकते हैं कि head held high, ये जो तीन वर्ड्स है which are starting with H letter sound. So that's why it is also called as alliteration. चलो हम देखते हैं second line of the poem. Where knowledge is free. So another view is there of the poet. So he's saying actually the poet visualizes here one thing. A nation where knowledge is accessible to one and all. यहाँ पे इसका मतलब होता है education is free to everyone और education is given to all. सबको शिक्षा मिलेगी. ओके, सो वी कैन सी हियर since knowledge and education alone will lead the people from darkness to light. एक ही ये वे है, एक ही ये जो मार्ग है जिससे हम डार्कनेस से, जो अंधकार है हमारे जीवन में, उससे हम प्रकाश में आ सकते हैं. वी कैन जस्ट गो टू द लाइट. सो दैट्स व्हाई ही सेज we can say education is given to everyone without discrimination. ओके, सो जो भेदभाव किए बिना हर किसी को एजुकेशन मिलना चाहिए, एक ऐसा व्यू रवींद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पे व्यक्त किया है. वेयर द, उसके बाद में हम अगली लाइन देखते हैं. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स. यहाँ पे ब्रोकन अप का मीनिंग क्या होता है? सो ब्रोकन अप मीन्स इसका मतलब है बटना. ओके, एंड इनटू फ्रैगमेंट्स. फ्रैगमेंट्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे? तो फ्रैगमेंट का मीनिंग यहाँ पे है स्मॉल पीसेस, स्मॉल पार्ट्स ऑफ समथिंग, मीन्स टुकड़ों में बट जाना. इसका मतलब क्या हो रहा है कि टुकड़ों में बट जाना. इसके आगे की जो लाइन है बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. ओके, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स व्हाट? नैरो माइंडेडनेस. इसका मतलब होता है नैरो माइंडेडनेस. कौन सी बात के बारे में नैरो माइंडेडनेस? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे सोसाइटी में बहुत सारे डिविजन्स है. सो दोज ऑल द डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास, रेस, creed, color, rich and poor. So if such divisions are there in a society, so definitely our society will be broken up into fragments. उसका टुकड़ों में बंटना अनिवार्य है. 100% टुकड़ों में बट जाएगी. मगर यहाँ पे कवि कहते हैं कि एक्चुअली आवर कंट्री शुड बी द वन
unity should be there in our country, and that's why the narrow mindedness should not be there in our country. So this is the very nice view of our poet Rabindranath Tagore is expressing here, that our whole country should be the one, unity should be there, and we should not have the narrow mindedness, so which can break our country into small pieces, into small parts. Okay, so we'll just go to the next line of our poem. That is where words come out from the depth of truth. Okay, so what is mean by the words come out from the depth of truth? यहाँ पे जो वर्ड है द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, डेप्थ ऑफ ट्रूथ का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी ऑफ हार्ट, जहाँ के लोग ट्रूथफुल होने चाहिए, सिंसियरिटी उनमें होनी चाहिए. सो द पीपल शुड वर्क सिंसियरली. सो दैट इज़ द ओनली वन व्यू ऑफ दिस पोएट. सो जहाँ पे लोग सब सत्य बातें करते हो, सत्य ही वो बोले, ऐसा एक देश हो. मीन्स एक्चुअली all the work should be done with the truth. Deceitfulness should not be there in those people. हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो धोखे हमें यहाँ पे देते हैं, सो उनके सेल्फिशनेस के कारण वो दूसरों को धोखा देते हैं. सो डेफिनेटली दे स्पीक लाई. ओके, सो दैट टाइप ऑफ थिंग शुड नॉट बी देयर. लोगों ने लाए नहीं बोलना चाहिए, झूठी बातें नहीं करनी चाहिए. सो ऐसा एक देश यहाँ पे कभी एक्सपेक्ट करते हैं, उनका भी एक विजन है. ओके, सो दिस इज़ द ओनली वन थिंग. सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द डेप्थ ऑफ ट्रूथ मीन्स सिंसियरिटी ऑफ हार्ट और ट्रूथफुलनेस. चलो हम अगली लाइन देखते हैं. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन. यहाँ पे टायरलेस स्ट्राइविंग मीन्स व्हाट? टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब आप लिख सकते हैं कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल. उसे आप हार्ड वर्क भी कह सकते हैं. कंटिन्यूसली पीपल मेहनत करते हैं. द स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स. स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एम्स एट अचीविंग गोल फॉर परफेक्शन. सो यू कैन सी हियर, जहाँ पे लोग कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते हैं और एक ही ध्येय उनका होता है कि एक्चुअली टू रीच देयर गोल फॉर द परफेक्शन, टुवर्ड द परफेक्शन. सो डेफिनेटली जो लोग मेहनत करते हैं वही देश को आगे ले जा सकते हैं. यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है. मैंने एक पोएम पढ़ी थी, उसमें कहा गया था हु कैन मेक कंट्री अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन. तो वहाँ पे 2-3 बातें उन्होंने बताई थी कि एक्चुअली द वेल्थ, द एरोगेंट किंग एंड द मिलिट्री पावर, ये जो 3 चीज़ें, कुछ कहते हैं कि वेल्थ ज़्यादा होने से एक कंट्री स्ट्रांग हो सकती है. कुछ लोग कहते हैं कि जो उस पर रूल कर रहा है, जो राजा होता है, वो राजा एरोगेंट हो तो सो डेफिनेटली वी कैन कॉल एज द कंट्री विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. और कुछ कहते हैं मिलिट्री पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तो मिलिट्री अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली द कंट्री विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. बट आफ्टर all these things, the poet expressed one thing: all the things cannot make any country the strongest one or the developed one. So only one thing, that the people of that country who can do anything else for their country, they can sacrifice their life, they are ready to shed their blood in the crisis to come or to bring their country out of all the critical situations. They are ready each and every time. So those type of people can make that country the strongest one. So यहाँ पे भी कवि ने यही बात बताई है कि टायरलेस स्ट्राइविंग होनी चाहिए, कंटिन्यूसली वो हार्ड वर्क करती रहनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए. एंड दे शुड बी बैक अप देयर गोल टू, दे शुड ट्राई टू अचीव देयर गोल. एंड that time our country will be developed one. So एक ऐसा बहुत ही खास एक व्यू यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक्सप्रेस किया है. सो उसके बाद में हम देखते हैं अगली लाइन
वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। यहाँ पे क्लियर स्ट्रीम मीन्स व्हाट? क्लियर स्ट्रीम का मतलब होता है क्लियर थिंकिंग। आप लिख लीजिए, क्लियर थिंकिंग ऑफ रीजन। ऑफ रीजन मीन्स रेशनल थिंकिंग, लॉजिक और लॉजिकल थिंकिंग वी कैन कॉल एज अ। पोएट यहाँ पे कह रहा है कि आपने लॉजिकली सोचना चाहिए। एंड अनदर वे वी कैन सी लॉस्ट इट्स वे, हमें हमारा रास्ता भूलना नहीं चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। नीचे यहाँ पे एक लाइन उससे जुड़ी हुई है, इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, मैंने अंडरलाइन कर दिए। द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। यहाँ पे ड्रीरी का मतलब क्या है? ड्रीरी का मतलब है डल, इनफर्टाइल, यूजलेस। डल मीन्स व्हाट और इनफर्टाइल मीन्स व्हाट? हम जानते हैं कि ड्रीरी डेजर्ट डेजर्ट आप जानते हैं वहाँ पे हम क्रॉप्स नहीं ले सकते, वहाँ पे पौधे, प्लांट्स कैन नॉट बी सर्वाइव्ड, ऐसा नो। तो ड्रीरी मीन्स डल, जो यूजलेस होता है, कुछ भी काम का नहीं होता है, जो सैंड, जो पूरा वालुकामय प्रदेश जो होता है, सो डेफिनेटली इज़ नॉट ऑफ यू एनी यूज़। जिसका कंपैरिजन उन्होंने किया डेड हैबिट। और ये डेड हैबिट क्या है? डेड हैबिट का मतलब है ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल। कवि यहाँ पे कहते हैं सो जो भी ओल्ड ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, सुपरस्टिशंस हम बिलीव करते हैं उन पे, ओके, सो विच आर हार्मफुल टू अस। सो हमें वैसा नहीं सोचना चाहिए कि एक्चुअली वी शुड नॉट बिलीव ऑन द ओल्ड ट्रेडिशंस विच आर हार्मफुल। ओके, जो भी हार्मफुल है, कुछ भी काम का नहीं है, वी शुड नॉट हैव द बिलीव ऑन देम। सो हमारी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए? सो हमारी थिंकिंग होनी चाहिए लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, साइंटिफिक वे। वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑन एनी ऑफ आवर प्रॉब्लम। लाइक एनी इंसिडेंट इज देयर, we should not believe on the superstitions, but we should find out the solution, or we can say the answer of it with the help of scientific view। ये सोच है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। उन्होंने कहा है कि क्लियर थिंकिंग लोग की होनी चाहिए और थोड़ा सा लॉजिकल साइंटिफिक व्यू, यहाँ पे रेशनल व्यू उनका होना चाहिए। सो डेफिनेटली द आवर कंट्री विल मेक प्रोग्रेस। ओके, सो आगे देखते हैं हम। यहाँ पे आगे की लाइन है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। यहाँ पे उसके आगे भी उसी से जुड़ी एक लाइन है, where the mind is laid forward by thee into ever widening thought and action। यहाँ पे the poet is addressing directly to God। the word you can see here thee, ये जो the word है which is actually used in old English as a pronoun you। the का मतलब होता है you। where the mind is laid forward by you, तो किसने उनका नेतृत्व करना चाहिए? सो नेतृत्व करना चाहिए गॉड ने, भगवान ने। ऐसा एक व्यू रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। मैंने आपको पहले कहा है, ये एक प्रेयर है। कवि अपील कर रहे हैं गॉड को कि कैसा देश मिलना चाहिए, कैसा फ्रीडम मिलना चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं। सो डेफिनेटली वी कैन से दैट दिस वन टाइप ऑफ प्रेयर। एंड एक्चुअली नाउ द पोएट इज सेइंग द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। द माइंड यहाँ पे जो द माइंड वर्ड है ये किसके लिए आया है? सो एक्चुअली इज स्टैंडिंग फॉर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। सो इज ऑल्सो वी कैन कॉल एज अ synecdoche is there, and if anyone addressing to the supernatural thing, that is the, okay, God is there, ghost is there, so that time is called as a apostrophe, figure of speech। आगे कवि कहते हैं into ever widening thought and action। एवर वाइडनिंग, आपका जो विचार, आपके जो एक्शंस कैसे होने चाहिए? सो एवर ब्रॉडनिंग होने चाहिए, वो ब्रॉड होते जाने चाहिए। ओके, सो व्हाट मीन बाय एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन? इसका मतलब होता है ब्रॉडनिंग द आउटलुक एंड एटीट्यूड। आपका जो आउटलुक है, एटीट्यूड है, वो हमेशा ब्रॉड होता जाना चाहिए।
ओके, आप छोटे संकुचित बातों में नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए. सो एक्चुअली इफ़ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस इन योर लाइफ, और वी कैन से इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस make progress in our country, so definitely broadening आउटलुक वहाँ पे चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, सो दैट टाइम वी कैन मेक प्रोग्रेस. सो एक ऐसा व्यू, ऐसा एक एटीट्यूड, आउटलुक हमारे लोगों को मिलना चाहिए. ऐसा कवि यहाँ पे गॉड को कहते हैं, और उनका नेतृत्व किसने करना चाहिए? सो डेफिनेटली गॉड. ओके, सो जो लास्ट लाइन है, बहुत ही खास लाइन यहाँ पे अंत में कवि ने दी है. Into that haven of freedom, my father, let my country awake. यहाँ पे heaven of freedom means what? Haven of freedom का मतलब होता है condition of total freedom, condition of total freedom of good thoughts, good words and good deeds while respecting those of others. यहाँ पे लोगों को पूरा पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जहाँ पे लोग अच्छे विचार रखते हो, अच्छी बातें करते हो, अच्छे शब्द यूज करते हो, अच्छे कार्य करते हो, और कार्य करने की स्वतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिए. ऐसा देश वो कहते हैं. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, माय फादर मीन्स यहाँ पे कभी फिर से गॉड को एड्रेस कर रहे हैं. सो डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज एपिस्ट्रोफी. लेट माई कंट्री अवेक. लेट माई कंट्री अवेक, तो जो सोया हुआ देश है, जो लोग हैं हमारे देश में के, उन्हें जगाओ. उठना चाहिए देश, आगे बढ़ना चाहिए. ऐसे एक व्यू कवि ने यहाँ पे रखी है. सो पूरा देश नींद से उठना चाहिए, and then there should be a haven of freedom. Okay, so the poet is expecting the freedom from the colonial rule of British people. जो हमारे पे राज्य करते थे, ऐसे जो ब्रिटिश पीपल थे, उनसे हमें स्वतंत्रता चाहिए थी. तो पूरा देश उठना चाहिए, and then there should be the haven of freedom. एक ऐसा देश होना चाहिए कि जहाँ पे हमें अच्छी बातें, अच्छे विचार और अच्छे कार्य करने की स्वतंत्रता हो. वेयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ फियर, जहाँ पे कौन सी भी बात का डर ना हो. द पीपल शुड बी एबल टू लिव फियरलेसली, जहाँ पे सबको सम्मान हो. ऐसा एक देश होना चाहिए. सो वी कैन से अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रवींद्रनाथ टैगोर. इसके बाद में दूसरे वीडियो में हम देखेंगे इसी पोएम के जो फिगर ऑफ स्पीच है, एंड वी नो वेरी वेल द पार्ट विच कम्स फॉर द 5 marks in exam, that is poetic appreciation. We will see in the next video. Thank you very much. Please subscribe my channel and like my videos, and also click the bell icon. Thank you very much.